Good morning student, welcome back to Math for class 12th. Today is the new topic 7.4 exercise integration by the parts. Integration by the particular fraction. So using this formula, integration dx upon ax square minus a square equal to 1 upon 2a log x minus a plus upon x plus e plus c. Okay, dx upon a square minus a square minus, you can change in minus, taking minus common, तो this formula one formula equal to minus 1 upon 2a ये भी यूज कर सकते हैं, and then after new formula 1 upon 2a log a plus x upon a minus x. ठीक है, and dx upon x square a square ये tan inverse formula 1 upon a tan inverse and 1 upon अंडर रूट लग जाए तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग दिस प्रॉपर्टी. ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर इज टर्म ऑफ साइन स्क्वायर फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन. ओके, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी एंड डी एक्स अपॉन अंडर रूट दिस अंडर रूट ऑफ टेन इनवर्स फंक्शन. टेन इनवर्स फंक्शन में अंडर रूट आ जाए तो देन चेंज इन दिस फॉर्म. ओके, ये थोड़ा माइंड रखना पड़ेगा बहुत डीपली, और ये फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट. 7 formula 8 9 and already given in NCERT. This under root a square x bx plus c, this is a quadratic form. Then quadratic form already changed in the form of this formula, given formula. Okay, quadratic form change to this, and by completing square method, or you can study on the 10th class completing square method, right? So completing square method used in this integration formula means quadratic formula, and quadratic form change to completing square method, and then after use this formula. Okay, above formula. And same of this question, you can change of this this denominator according to numerator. Okay, and then find using this formula, find the solution by this formula. Okay, or this form. And second method is also changed, the numerator is equal to a dy dx of denominator plus b using this formula. Okay, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे बाय न्यूमरेटर. हाँ, एक पॉइंट है, डिग्री ऑफ द डेनोमिनेटर, डिग्री ऑफ द डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर. ओके, न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी, डेनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना. एंड आगे फॉर्मूला क्वेश्चन करना है. Now let question number 1. That's short point. Exercise 7.4 question number 1. And find integral 3x square upon x raised to 6 plus 1. X raised to 6 plus 1 integration and dx. So this change to whole square formula. Okay, this 3 square and this x raised to 3 whole square plus 1. 3 2 जा 6 are clear. So let by substitution method x cube equal to t and 3x square dx equal to dt using this formula, right? So 3x square already given, dx let's change, and dt, this value is also dt, or this t square plus 1. तो this value किसके हो गए, tan inverse. तो 1 upon a equal to 1, x equal to this, 1 upon 1 tan inverse t upon 1 plus c. So 1 upon 1 1, यानी tan inverse t equal to x cube upon 1 this, and same that your answer. Okay, so next question number 1 to 9 are same, 9 are the same question. Now let question number 9, sec square x upon, this is the important question for board examination, and tan square x plus 4 integration and dx. Okay, so let tan x equal to t, ddx of tan x, sec square x dx equal to dt. This value putting, sec square dx already given, so this integral 1 upon under root tan equal to t and then square plus 2 square 4 equal to t and dt. Using this formula 1 upon under root a square plus x square plus a square change to
लॉग फॉर्म, ओके। तो 1 अपॉन नॉट गिवन, तो लॉग t प्लस अंडर रूट t स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर मीन्स 4. दिस यूज दिस फॉर्मूला, ओके. सो विल बी इक्वल टू log t इक्वल टू 10x प्लस अंडर रूट t स्क्वेयर 10 स्क्वेयर x 4 का 4 प्लस c, दैट योर आंसर. ये फॉर्मूला आपको रिवाइज है तो आपका वेरी सिंपल, अदरवाइज घूमते रहना, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 to 23 आर सेम अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चंस. 7 to 9 10 क्वेश्चन फॉर्मूला इट इज सेम. So now question number 12, very important question, most important, more repeated this question in board examination. 1 upon under root 7 minus 6x minus x square integral dx. So this changed in the simplify of this question. Now 1 upon under root 7 minus common ले लो, this 6x plus x square and will be equal to 1 upon the root 7 completing square. You change in completing square है 6x plus x square, right? तो 2ab equal to 6x, 2ab जैसे 2ab equal to 6x. a is clear x, so 2 into x, but b मुझे फाइंड करना है तो 6x x x कट, तो 2b equal to 6 by 2 यानी 3. तो 3 का स्क्वायर मुझे ऐड करना है और 3 का ही प्लस, राइट. ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने 10th क्लास में पढ़ा था. 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यही था ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सो विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस ब्रैकेट 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9 और माइनस 9 यूज कर लिया, और ये तो होल स्क्वायर हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट माइनस प्लस माइनस 7 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9, ओके. और माइनस प्लस माइनस इस ब्रैकेट की होल वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 7 9 16 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर, ओके. ये चीज बन गया. अब सब्स्टिट्यूट कर दो. 1 अपॉन अंडर रूट 16 का हो जाएगा 4 स्क्वायर और दिस हो जाएगा t स्क्वायर. यहाँ कर दो लेट x प्लस 3 इक्वल टू t एंड dx इक्वल टू dt, राइट. सो नाउ पुटिंग इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू integration this term change of and under root 4 square minus x plus 3 square dx will be equal to 1 upon under root 4 square minus t square. सब्स्टिट्यूट पीछे कर दिया हमने and dt. So equal to this formula under root 4 square and t square. अंडर रूट 4 स्क्वायर है यानी कांस्टेंट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स, राइट. साइन इनवर्स फंक्शन. दिस इज ए साइन इनवर्स फंक्शन टी अपॉन ए इक्वल टू 4 प्लस सी, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी. 10 साइन इनवर्स टी इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी, दैट योर आंसर, ओके. सो नाउ लेट क्वेश्चन नंबर 15 तक सेम ही क्वेश्चन है. इस टाइप के 12 15 16 17 सेम, 10 to 15 सेम एंड 16 to 23 सेम, और सेम ही मेथड है अब इसका. अब ये टाइप के अलग होने, आपको 15 तक 1 अपॉन है तो कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकल 1 होगा न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर वेरिएबल. अब क्या होगा, दोनों ही न्यूमेरेटर डेनोमिनेटर वेरिएबल्स होंगे, बट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा डिग्री क्या है, ओके. तो डिग्री वाला क्वेश्चन कोई मिलेगा तो मैं बता दूंगा. वैसे एग्जांपल में जैसा दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है इसका और लेंथी भी क्वेश्चन है. दिस गिवन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है, ऐसे है ना. इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ तो बड़ा टफ हो जाएगा, ओके. सो चेंज दिस वैल्यू इंटीग्रल dx a dy dx
ऑफ डेनोमिनेटर, ये फॉर्मूला 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, यूज दिस फॉर्मूला, दिस इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx. सो नाउ दिस क्या था आपका, न्यूमेरेटर इक्वल टू ये फॉर्मूला px प्लस q इक्वल टू a dy dx ऑफ ax स्क्वेयर bx प्लस c प्लस b, यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो ये लगा लो आप यहाँ पर, ax के इक्वल होता रखा 5 माइनस 2x, a dy dx ऑफ दिस 1 0 हो गया एंड 2 प्लस 6x एंड दिस b कांस्टेंट एंड कंप्लीट कर दो 2a प्लस 6x प्लस b. So 5x minus 2 equal to 2a plus b plus 6ax. Comparing, है ना, comparing both side, coefficient of x and constant, right? Constant and coefficient of x. तो 6a equal to 5, 5a equal to 6a, then a equal to 5 by 6 and 2a plus b equal to minus 2 and then b equal to minus 2 और a equal to multiply 5 by 6. 2 से 2 कट गया 3 हो गया, this minus 2 minus 5 by 3, 3 2 जा 6 minus 6 minus 5 by 3, then b equal to minus 11 by 3, b equal to this and a equal to 5 by 6. ये आंसर, और इसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, देन आफ्टर फाइंड दिस इंटीग्रेशन. ओके, सो इंटीग्रेशन 5x minus 2 upon this dx equal to a equal to 5 by 6 इंटीग्रल व्हेन डिफरेंशियल फंक्शन क्या है आपका 2 प्लस 6x, राइट, dx अपॉन दिस सेम डेनोमिनेटर सेम 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, राइट, प्लस b इंटीग्रेशन, b की वैल्यू क्या, सॉरी b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू है साइड आउट प्लस माइनस 11 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx. ये रहेगा b इंटीग्रेशन सेम वैल्यू, डेनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा ना, न्यूमेरेटर वैल्यू निकालिए, न्यूमेरेटर ये आ गया आपका. सो देन फॉर पुटिंग, और लेंथी क्वेश्चन है और 4 मार्क्स से कम नहीं आता ये क्वेश्चन. दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू a 5 by 6, तो ये तो ऑलरेडी t बनेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, है ना, 1 प्लस 2x बना के किया है ना फर्स्टली, इक्वल टू t, तो 2 प्लस 6x dx इक्वल टू dt बन गया, माइनस 11 बाई 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइए, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसी का बड़ा टफ पड़ेगा, बस आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन. तो 5 बाई 6 दिस 1 अपॉन t log t माइनस 11 बाई 3. अब बनाइए भाई, नाउ देखो 2x इक्वल टू 2ab, 2 से 2 कट गया, ये रह गया x इक्वल टू 2, यानी a क्या आपका अंडर रूट 3x और b की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो x से x कट हो गया, अंडर रूट 3, तो b क्या हो जाएगा, a हट गया आपका, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया आपका b. ओके, इसी के स्क्वायर को प्लस माइनस करने का है मुझे, तो देखो 1 प्लस 2x, नाउ अलग से करना है, ये रफ इंटीग्रेशन मुझे यहाँ रखने का है 1 अपॉन, ओके, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3. ठीक है, तो इसके प्लस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होल स्क्वायर हो गई, और 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 3 हो गया 2 बाई 3, राइट.
सो आपका बनेगा 2/3, ओके दिस, और ये वैल्यू प्लस, और ये बन जाएगी √3 प्लस √3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 1/3 है तो 1/√3 होल स्क्वायर, ओके ये बना गया। अब वैल्यू पुट कर दो, 5/6 log t की वैल्यू 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 11/3, ध्यान देना इसको, इंटीग्रेशन 1 दिस वैल्यू को पहले लिखेंगे √3x + 1/√3 का होल स्क्वायर, और प्लस दिस होल स्क्वायर में चेंज कर लो तो √2/3 का होल स्क्वायर क्या होगा 2/3 एंड dx, तो ये बन गया x² + a², 1/x² + a² इज ए tan इनवर्स फंक्शन, राइट, x², तो इसको भी u मान लीजिए, लेट √3x + 1/√3 इक्वल टू u एंड dx ऑफ दिस √3 dx, दिस 0 बन गया, du सॉरी dx इक्वल टू du, तो dx इक्वल टू du/√3 पुटिंग कर दो, एंड देन आफ्टर 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 11/3 एंड दिस चेंज टू इंटीग्रेशन 1/u² + 2/3 du will be equal to 5/6 log 1 + 2x + 3x square minus 11/3 using this formula into, this is a tan inverse a, 1/a, 1/a, a means √2/3, a tan inverse x/a, x means u/a, a means √2/3 plus c, right, and this will be equal to 5/6 log 1 + 2x + 3x square, ओके माइनस देखो चेंज करो, दिस 1/√3 ऊपर आ गया, √3 ये आ गया, तो √3 ये अपॉन से दिस, तो 1/5 ये 11/3 इंटू 1/a, तो √3 ऊपर हो जाएगा, तो 11√3/3√2, ओके एंड हाँ ये वाला हुआ, ये वाला मेरा ये बन गया, इस वाले में 2/3 आया, 3 दिस 1 का होल स्क्वायर बना, ओके इसके होल स्क्वायर को मैंने 1/a ले लिया, 1/a हो गया √2/3, इसकी वैल्यू होगी t, तो आप देखो इसका 1/√3 और आया था, 1/3 से मल्टीप्लाई, अरे ये रहा 1/3, dx इक्वल टू 1/√3 इंटू √3, ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ से, इंटीग्रेशन ये हाँ ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की 1/3 इंटू √3, ये बोल गया बराबर, ये वाले du/√3 dx इक्वल टू दिस, तो du/√3 सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ √3 अपॉन डिवाइड है ना, ये डिवाइड है तो डिवाइड आ गया, अब ये बन गया, अब इसका आ गया tan इनवर्स u की वैल्यू क्या है √3x + 1/√3 अपॉन √2/3 प्लस c, अगेन सॉल्व कर लो भाई, √3 से √3 कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x square minus 11/3√2, राइट, tan इनवर्स √3 का एलसीएम लो तो 3x + 1/√3, 1/√3 कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3x + 1/√2, √3 से √3 प्लस c, दैट योर आंसर, ओके
देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेरी सिंपल। सेम इसी टाइप क्वेश्चन है और कोई अलग है। 19 to 23 यार सेम है, ये सेम ही है। देखो ये भी ऐसे ही करना है, 7x + 3 अपॉन अंडर रूट का, चूंकि अंडर रूट भी वजह से लिया, बाकी तो सेम ही कोई वर्क है जैसे आपने 18 क्वेश्चन किया है, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन, एंड दिस 4x + 10। ओके, सो दिस विल बी चेंज इक्वल टू दिस a dy/dx ऑफ अंडर रूट के पार्ट वाला, अंदर वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म ax², नॉट अंडर रूट। ओके, x² + 4x + 10 + b, so 5x + 3 equal to a ddx of this 2x + 4 + b, comparing this 2ax + b, 2ax + 4b, 4a भी है इसमें, 4a 4, तो कांस्टेंट दिस कंपेयरिंग। ओके, a this value 2a equal to 5, 5 equal to 2a, and this 3 equal to b + 4a, तो a की वैल्यू कितना आ गया 5/2, and putting this value 3 equal to b + 4 into 5/2, 2 से 2 कट गया 10, तो 3 - 10 equal to b, then b equal to -7. Putting this integral 5x + 3 upon under root x² 4x + 10, 10 के दो पार्ट कर दो बेटा, a equal to 5/2 इंटीग्रेशन दिस वैल्यू 2x + 4, ओके, अपॉन दिस कंप्लीटिंग अंडर रूट, यही सेम x² + 4x + 10 dx -7 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट, सेम वैल्यू x² + 4x + 10 dx। ओके, सो दिस वैल्यू चेंज टू 4x, 4 × 2 × 2, तो 2 बचा, 2 × 2 = 4, 4 अब इसको टुकड़े कर दो तो अपने आप ही आ जाएगा दिस 5/2, तो ये वैल्यू तो t हो जाएगी चूंकि ये ऑलरेडी गिवन है, तो 1 अपॉन अंडर रूट t हो जाएगा, दिस वैल्यू t, नॉट ए अंडर रूट t। ओके, जिसको ही तो लेट किया था हमने, डिफरेंशिएट किया, दिस डिफरेंशिएट, तो यहाँ लिख दो x² + 4x + 10 equal to t, 2x + 4 dx equal to dt, -7 this will be changed 1 upon under root x +2 होल स्क्वायर + 6, ये बचेगा dx। ओके, इसको चेंज कर दिया मैंने। ओके, 5/2, और ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कर दी, तो t⁻⁻⁻² + 1, ओके, तो अपॉन दिस -1/2 + 1 -7, एंड दिस इंटीग्रेशन फॉर्मूला कौन सा बनेगा, अंडर रूट x² + a², अंडर रूट x² + a², तो लॉग वाला प्रॉपर्टी। ओके, लॉग ब्रैकेट अंडर रूट लॉग + 1 क्या बनेगा, x + 2 प्लस अंडर रूट x + 2 का पूरा होल स्क्वायर, क्या है, यही है सेम वैल्यू, तो इसको ही रख दो, फिर बाद वैल्यू तो आपको ओपन करना है, +c, दिस विल बी इक्वल टू 5 अपॉन देखो 2, और दिस हो गया 1/2 + 1 1/2, 2 कट जाएगा, 2 अपॉन 1, और ये हो जाएगी अंडर रूट t, 2 कट, -7 log x + 2 प्लस अंडर रूट x² + 4x + 10 + c, एंड देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t किसको लेट किया था आपने, पूरी होल वैल्यू को किया था ना, ये यस, तो दिस 5 अंडर रूट x² + 4x + 10 -7 log ब्रैकेट x + 2 प्लस अंडर रूट x² + 4x + 10 और प्लस c, that your answer. Complete your exercise. If any doubt you can ask to me. Okay, thank you.